sir. Okay. So hi team, recording has been started. So I hope you all have gone through with the recording and practice at your end. आप सब लोगों ने practice की है अपने end पर? Are you practice? अपने Yes, sir, की है। end पर practice की है? सबने? हम लोग API call तक पहुंच गए थे. We have done till API call. We have done, you know, how to set up a API, you know, how to set up a API call from Angular layer. So इतना काम हम लोग already कर चुके हैं. So have you all tried and practiced from your end? आप सब लोगों ने अपने end पर practice की है कि Angular में service से कैसे API को hit करते हैं? Yes. Yes or no? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay. तो अभी तक हमने yeah. So far we have seen an API call, get call. ठीक है? Correct? So I'll give you one assignment today at the end. But now what we can, you know, try now is let's start forms today. Okay? Let's start forms, like how we can create forms or forms and validations. ये try करते हैं. Okay? Correct? Okay, sir. So I am just, you know, starting my, just sharing my page. Give me a minute. Let me know once you're able to see my screen. Hold on. Basic API, my basic application. Is this? Yes. I'm sharing my screen now. Are you able to see my screen? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Now? No, sir. No, sir. No, sir, it is not visible. Okay. Visible Now it now. should be, right? Yes, sir. Now it is visible. Okay. So let's do one thing. Let's add a new component. So नया component कैसे add करें? Let me add a new component ngg component followed by the component name. Ng is Angular, G is for generate, C means component, correct? And then followed by component name. क्या नाम रखूं component का? एक form की बात कर रहे हैं हम. So let's say employee. Okay? Employee. Okay. Okay, good. Now अब मुझे बताओ, मुझे अपना employee form start करना है. So how should I be able to you know, start my employee form? Go to app component .html and there is the selector of this सबसे employee. पहले हाँ, first of all check the selector of app component. Sorry, employee component. क्या है selector इसका? app-employee. तो मैं इसमें से app हटा देता हूँ, खाली employee. Better? What do you say? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So
we take employee, we go to app component HTML, यहाँ से user को क्या करते हैं, comment कर देते हैं, okay, and then what we do is so now let's run this application ng of right ng serve. I say yes, so it will open it in the next port. So which port it is hitting? 6560. Okay. Let's go back. So good. That's working. Right? So let's start it. Now let's see all these things step by step, one by one. Okay. तो देखते हैं ये build-up कैसे होगा. We go to our form. अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट पे चलते हैं. लेट्स गो टू अवर एम्प्लॉय कंपोनेंट और यहां से अपना फॉर्म बिल्डअप करते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्म्स. दो तरह के फॉर्म्स हैं होते हैं एंगुलर के अंदर. एक होता है रिएक्टिव, एक होता है टेम्पलेट बेस. रिएक्टिव हमारा डायनेमिक होता है. डायनेमिक मतलब उसे हम क्रिएट करते हैं, वो हमारे हिसाब से चलता है. हम कंप्लीटली कंट्रोल में होते हैं. मतलब वी बेसिकली कंट्रोल. We can control our reactive form, right? When we say we can control, मतलब हम dynamically उसको control कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे dynamically बनाते हैं, तो उसे हम dynamically control कर सकते हैं reactive form को. लेकिन जो template base होता है उसे मतलब dynamic हम उसको भी कर सकते हैं. We can make it dynamic as well. Point is, but वो template है, मतलब हमें template पहले declare करना पड़ता है HTML में और फिर template के behalf पे कोड करना पड़ता है. बट रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्टिव होता है कि हमने उसे डायनेमिकली क्रिएट किया है फ्रॉम द स्क्रैच, और हम उसे कोड बिहाइंड फाइल से, अपनी टीएस फाइल से, अपनी क्लास फाइल से हम उसे हैंडल कर रहे हैं. ओके. टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म मींस तुमने एचटीएमएल में गए तुम और तुमने टेम्पलेट बना दिया. फॉर्म के अंदर तुमने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिए, रेडियो बटन डाल दिए, चेक बॉक्सेस डाल दिए, बटन डाल दिया, मतलब तुमने टेम्पलेट डिसाइड कर लिया. यू हैव डन with the template, or based on that template you are now coding. Are you getting my point? Yes, sir. Correct. Template Yes, based form means आपने यहाँ पर फॉर्म बिल्डअप किया, जो है कंट्रोल्स डाल दिए, div, label, right? तरह से yes. you have added, आपने लॉगिन फॉर्म डाल दिया फॉर एग्जांपल, राइट? पासवर्ड एंड यूजर नेम. नाउ मुझे क्या करना है? मुझे इस फॉर्म से डेटा जो है लेना है. आई नीड टू टेक द डेटा फ्रॉम दिस फॉर्म and post to my code behind file, which is my class file, which is my component file, right?
करेक्ट? तो ये हुआ हमारा Yes. टेम्पलेट बेस अप्रोच, ये हुई टेम्पलेट बेस अप्रोच। आपने पहले टेम्पलेट सेट कर दिया एंड नाउ यू आर डायनेमिकली हुकिंग इट with your code behind file, right? Instead of that, second approach is reactive form। मतलब आपने पहले सब कुछ डायनेमिकली कोड बिहाइंड फाइल में सेट कर लिया, बेस्ड ऑन योर कोड बिहाइंड फाइल, जो आपने अपनी कोड बिहाइंड फाइल मतलब अपनी क्लास फाइल में जो आपने फॉर्म का डायनेमिक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म आपने रेंडर किया यूआई में, right? That is called reactive form approach. So let's see that. So very first step that you need to do is आप app module में जाओगे और आप form module, Sir, reactive form module import hello. करोगे। Excuse me, sir. हाँ, yeah? सर तो हमें इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए एज एन कोडिंग, मतलब हम रिएक्टिव और टेम्पलेट? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपके पास अगर आपको फॉर्म को डायनेमिकली यूज करना है, करेक्ट, आपको डायनेमिकली Yes, फॉर्म sir. बनाना है या डायनेमिकली इसको यूज करना है, सो बेटर वे इज रिएक्टिव फॉर्म। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म है, स्टैटिक फॉर्म है, तो गो बाय टेम्पलेट। तो बट सर आपने कहा कि हम टेम्पलेट के साथ भी हम उसे डायनेमिक बना सकते हैं, एज हम लोग उसे बाद में कोड बिहाइंड फाइल में एडिट करें। So पहले तुम देखो, I mean first you understand, then you will be able to get to know कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा ना। As I said, यस सर। सारी चीजें अवेलेबल हैं for your help. I mean it is there to be used. Now when you understand it, then only you'll get to know मुझे कहाँ क्या यूज करना चाहिए, right? So एक बार पहले देखते हैं। So on the fly अगर डायनेमिकली फॉर्म को एक्सटेंड करना है, एपीआई के बिहाफ पे फॉर्म रेंडर करना है, राइट, देन रिएक्टिव फॉर्म इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि ये एक तरह का डेटा ड्रिवन है, मतलब जो कोड बिहाइंड फाइल है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म बिल्डअप हो रहा है। जहां पर स्टैटिक फॉर्म की जरूरत है कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, पता है हमें स्टैटिक है, इज नॉट गोइंग टू चेंज। रजिस्ट्रेशन पेज हमें पता है कि इट विल बी स्टैटिक, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो उस केस में टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच इज गुड। Okay, so I am taking the complex one first. So reactive form approach पहले दिखा रहा हूं तुम्हारे को मैं कि कैसे करते हैं। So very first step is तुम्हें इसका मॉड्यूल लोड करना है @Angular, first step, and then you say reactive form module, correct? ये first step है, you have imported the reactive form module. What should be the second step? ये तो तुमने import किया but तुमने inject नहीं किया। second step is injection, right? You have injected it. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. What should be the next step? अब यहाँ हो गया, I mean this is done. We have imported, तो कोई error नहीं आएगा। We have make sure कि आपको error नहीं आएगा कि we don't know, the classes which we are using for reactive form, आपको कोई error नहीं देगा because we have imported and injected the module, reactive form module. Okay, let's go to the component जहाँ पर अब हमें use करना है। तो again मैं HTML पे नहीं गया, मैं सीधा TS पे गया because from here I will be creating it dynamically. So what we're going to do here, let's see. So import create form, kindly go on mute, और यहाँ से हम अपने कुछ क्लासेस ऐड करते हैं, सर्विसेज ऐड करते हैं, जैसे फॉर्म बिल्डर। ऑब्वियसली क्या समझ में आ रहा है फॉर्म बिल्डर से? व्हाट यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस? फॉर्म बिल्डर मतलब जो फॉर्म बिल्ड करेगी ऑब्वियसली। फॉर्म ग्रुप, द नेम इटसेल्फ डिफाइनिंग इज मीनिंग। फॉर्म ग्रुप मतलब ये हमारा ग्रुप ऑफ कंट्रोल डिसाइड करेगा, राइट, कि हमारे फॉर्म में कितने कंट्रोल्स होंगे, जैसे ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, राइट, एड्रेस होगा। तो ग्रुप, फॉर्म ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ कंट्रोल। एंड देन हमें वैलिडेशंस लगानी है, तो वैलिडेटर्स। क्लियर टीम? सिंपल था? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir.
तुम बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ। यस, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब करते हैं हम जो इसके लिए कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होगा। कंस्ट्रक्टर टिकट है और ओके ठीक है, विदाउट कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। नहीं, विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं चलना चाहिए। तो बाय नाउ यू ऑल अंडरस्टूड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब तक तुम सब लोगों को पता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, करेक्ट? तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फॉर्म बिल्डर जो जो क्लास है, मैं उसको यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जैसे ही मेरा एम्प्लॉय कंपोनेंट इनिशियलाइज हो, मेरी फॉर्म बिल्डर क्लास भी इंस्टेंशिएट हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? My form builder class should also get injected or instantiated as and when my employee component class is going to initialize. Are you okay with this or not? इसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। yes or no? Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, मैंने sir. फॉर्म बिल्डर क्लास अपनी इंजेक्ट कर दी। क्यों कर दी फॉर्म बिल्डर क्लास? बिकॉज आई नीड टू बिल्ड द फॉर्म। वेरी सिंपल, आई नीड टू बिल्ड फॉर्म डायनेमिकली, दैट्स व्हाई आई हैव created this class. Now अपने ng on it पे after constructor what is the next life cycle hook starts? ng on it. So ng on it पे I am I'm creating my or initializing my form. So I'm saying और उससे पहले मैं एक form यहाँ पर declare कर लेता हूँ। I would say form of form group. ठीक है, form which is of form group. Okay, क्योंकि मैं dynamically form बना रहा हूँ, so my form is going to be a collection of controls, which means my form will be a form group. So this dot form equals to this dot form builder dot group. अब मैं क्या कर रहा हूँ? My form builder is creating a group. Group of what? My form builder is creating a group. मेरा form builder एक group बना रहा है। Group किसका? किसका group? फॉर्म का सर। Controls का controls का group, correct? अब मैं अपने कंट्रोल्स यहाँ पर, जैसे हम एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर ग्रुप बना के दिखाएंगे, ग्रुप सेट करेंगे, राइट? सो मतलब ग्रुप बनाएंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू गेट ओवर हियर इज फुल नेम, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फुल नेम कैसा होना चाहिए? फुल नेम में बाय डिफॉल्ट तुम्हें कोई वैल्यू चाहिए? आंसर इज नो, मुझे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको एम्प्टी कर दो। मतलब डू यू वांट एनीथिंग टू बी रिटर्न ऑन द कंट्रोल बाय डिफॉल्ट? नहीं, तुम्हारा कंट्रोल ब्लैंक होना चाहिए ना, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, तो एम्प्टी छोड़ दिया। देन वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, तो क्या वैलिडेशन लगाई मैंने? रिक्वायर्ड फील्ड। मतलब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन मतलब इसको फिल करना ही करना है, यूजर हैज टू फिल इट, यूजर हैज टू फिल इट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मेरा कंट्रोल क्या होना चाहिए? यूजर नेम। नेक्स्ट कंट्रोल शुड बी यूजर नेम। अगेन यूजर नेम में इनिशियली I don't want anything to be written on the username text box initially, so I put empty. But for validation, username पे कौन कौन सी validation try हो सकती है या apply करनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? According to you, tell me. Team, according to you, how many kind of validation should be there on the username? Tell me. It should be unique. No, domain name should be there, must be there. username also. एक तो required होना चाहिए, right? एक तो required होना चाहिए।
अब मुझे एक से ज्यादा चाहिए, एक मैक्सिमम मिनिमम लेंथ भी होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, यूजर नेम आप 50 कैरेक्टर्स का लिख दो। तो अगर इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन वन वैलिडेशन, तो यहाँ पर हम एरे बना देते हैं कि वैलिडेशन का एरे, बिकॉज आई वांट टू अप्लाई मोर देन वन वैलिडेशन। सो एक वैलिडेशन मेरी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एक वैलिडेशन मेरी मैक्स लेंथ की या मिन लेंथ की, कि मिनिमम लेंथ जो है, मिनिमम लेंथ जो है 6 कैरेक्टर हो, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का यूजर नेम हो, राइट? Yes, sir. So, और उसके बाद मैक्स लेंथ, एक और वैलिडेशन, मैक्स लेंथ। सो वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ। सो मैक्स लेंथ जैसे फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर ज्यादा यूजर नेम नहीं हो, राइट? दैट इज मैक्स लेंथ। के बाद अगेन ईमेल में बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखा नहीं हो, एंड देन फॉर वैलिडेशन अगेन, एक तो मेरी वैलिडेशन होनी चाहिए रिक्वायर्ड, आई मीन इट इज कंपलसरी। और दूसरा जो वैलिडेशन या वैलिडेटर लगाना चाहिए मुझे, वो चाहिए ईमेल, ताकि इसका ईमेल फॉर्मेट चेक हो। करेक्ट? ईमेल में फॉर्मेट होता है ना कि ईमेल शुड बी इन अ ईमेल फॉर्मेट, राइट? सम टेक्स्ट, देन एट द रेट, देन सम टेक्स्ट, देन डॉट शुड कम, देन सब करेक्टर शुड कम, राइट? ईमेल का वैलिडेशन होता है, कभी सुना है, देखा है ईमेल वैलिडेशन? हैव यू सीन इट और नॉट? यस सर। देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा yes, सर। sir. और उसमें No, sir. अल्फाबेट रहते हैं, नहीं सर, क्रिएट नहीं जेड देखा। लगा सकते हैं, के से जेड तक ला सकते हैं। देखते हैं फेसबुक वालों ने लगाया कि नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पर ईमेल के लिए ऐसे डाल दूं, कभी देखा है लिखा होता है कि प्लीज अप्लाई, प्लीज राइट वैलिड ईमेल। यस सर। हाँ, तो वो ईमेल वैलिडेशन होता है कि ईमेल वैलिडेशन में इट विल चेक कि पहले सम करेक्टर शुड बी देयर, उसके बाद एट द रेट जरूर हो, एट द रेट के बाद फिर कुछ करेक्टर हो, करेक्ट? उसके बाद डॉट जरूर हो, और डॉट के बाद भी करेक्टर जरूर हो। ठीक है? गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस। सो इसके बाद ईमेल का और भी कुछ लें, पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद रिक्वायर्ड हो, इसमें भी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ डाल देते हैं कि पासवर्ड जो है वो 8 करेक्टर तक का हो, मिनिमम, मैक्सिमम 20 करेक्टर तक का हो, जैसे मिनिमम 6 का पासवर्ड नहीं। ओके? One second, just give me 1 minute. Someone is pinging me.
पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के बाद आगे इतना काफी है, पहले इतना फॉर्म बना के देखते हैं। व्हाट इज इट? Yes, sir. Okay. Let's do this much first. ठीक है ना? थोड़ा सा तुमको ट्रिकी लगेगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। हाँ, अच्छा, अब एक और कोई सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं करूँ। ओके, सो अब एक और काम करते हैं। व्हाट वी डू नाउ इज, क्यों दे रहे हैं? ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया हमने। समझ गया। डॉट फॉर्म, डॉट फॉर्म बिल्डर, डॉट ग्रुप छोड़ देते हैं, या वगैरह चले जाएगा। और एनजी यूनिट पर हमने इसको कर दिया, या बेटर इंस्टेड ऑफ एनजी यूनिट इसको हम पूरे को ही यहाँ पर कर देते हैं। तो इट इज गिविंग एरर कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया। सो यस, ऑन कंस्ट्रक्टर वी हैव इनिशियलाइज्ड आवर फॉर्म। ओके, सो फॉर्म इनिशियलाइजेशन के बाद लेट्स डू वन थिंग कि अब इस फॉर्म को मुझे फेच करना। आई नीड टू रीड द कंट्रोल्स ऑफ दिस फॉर्म, आई नीड टू रीड द कंट्रोल्स ऑफ दिस फॉर्म। सो मैं कैसे रीड करूंगा? मुझे इस फॉर्म के कंट्रोल्स चाहिए कि when I wanted to pull or get full name, so I should be able to get. When I want username, I should be able to get. When I say email, I should be able to get. तो उसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, या एक छोटी सी प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। गेट, आई से कोई अच्छा सा नाम इसका ले लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स इज अ गुड नेम, फॉर्म कंट्रोल्स, करेक्ट। छोटा सा गेट फंक्शन बनाते हैं। अब ये क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? मुझे रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? मुझे रिटर्न करेगा दिस डॉट फॉर्म, जो मेरा फॉर्म है, डॉट गेट, राइट। इसके क्या रिटर्न करेगा तो बताओ? गेट व्हाट? अकॉर्डिंग टू यू इट विल रिटर्न व्हाट? और सिंपल दिस डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आ रहे हैं? यस, कंट्रोल्स है। क्या रिटर्न करेगा? मुझे इस फॉर्म के, मेरे फॉर्म के, दिस डॉट फॉर्म के कंट्रोल्स रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये समझ में आया या नहीं आया? Yes. This will return the list of controls of this, और मैं इसका नाम, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ माई फॉर्म। इजी रहेगा तुमको समझने के लिए, माई फॉर्म। अब ठीक है, माई फॉर्म, माई फॉर्म, माई फॉर्म। तो this will return the list of controls of my form। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. Okay, so let's do one thing. अब चलते हैं, आई गेस दिस मच इज गुड इनफ, क्योंकि मेरा अब फॉर्म जो है डायनेमिकली क्रिएट हो गया है यहाँ बैकएंड से। मैंने सब सेट कर दिया है कि मेरे कंट्रोल्स का नाम क्या होगा, राइट? करेक्ट।
उसमें वैलिडेशंस कौन कौन सी लगेंगी? एम आई राइट टीम? इज दैट यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेव कर लो जो सेव नहीं हुआ है। अब HTML में चलते हैं, एंड नाउ वी विल डिफाइन अवर फॉर्म। सो फॉर्म, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। इस फॉर्म को यहाँ पर मैं एक डायरेक्टिव ऐड करता हूँ, फॉर्म ग्रुप, GROUP ग्रुप, फॉर्म ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ग्रुप। इसमें मैं अपना फॉर्म का नेम डालता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ माय फॉर्म? माय फॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ माय फॉर्म? मेरे फॉर्म का नाम क्या है? माय फॉर्म, ठीक है, My form. माय फॉर्म। इसमें अब डिव ऐड करते हैं, डिव में लेबल ऐड करते हैं, लेबल में डालते हैं फुल नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, करेक्ट। अब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना फॉर्म कंट्रोल नेम ऐड करता हूँ। क्या है मेरे फॉर्म का, मेरे इस कंट्रोल का नाम क्या है? फुल नेम। क्या है? फुल नेम। क्लियर है टीम? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके अभी मैंने वैलिडेशन से रिलेटेड कोई कोड नहीं लिखा, अभी सिर्फ मैं तुमको फॉर्म बिल्ड करना बता रहा हूँ, डायनेमिकली कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं वो बता रहा हूँ। सो अभी मैंने वैलिडेशन ऐड नहीं की, जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। एक काम करते हैं, फटाफट से इसी को ही कॉपी कर लेते हैं जगह जगह, राइट। वी नीड वन फॉर यूजर नेम, वन फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो फुल नेम और यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन यूजर नेम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूजर नेम? यूजर नेम, ओके। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ईमेल। व्हाट इज द नेम ऑफ my form control? email, right? Next is password. पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट तो नहीं होगा, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप Password. के लिए इनपुट टाइप क्या होगा? पासवर्ड। Password. व्हाट इज माय कंट्रोल नेम? पासवर्ड। Password. तो ये तो मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। एंड फाइनली आई नीड टू हैव अ बटन, सबमिट बटन। तो लेट्स ऐड वन मोर div। बट मेरा बटन जो है वो टाइप सबमिट होगा। सो व्हाई आई एम सेइंग बटन टाइप सबमिट? बिकॉज मुझे क्लिक इवेंट नहीं चाहिए, मुझे सबमिट चाहिए। डिफरेंस क्या है क्लिक में और सबमिट में? क्लिक, अगर मैं बटन पे क्लिक इवेंट डालता हूँ, क्लिक डायरेक्टिव डालता हूँ, तो बटन जैसे ही तुम क्लिक करोगे बटन क्लिक इवेंट फायर हो जाएगा, वैलिडेशन ट्रिगर नहीं करेगी। बट अगर मैं सबमिट डालता हूँ तो सबमिट क्या होगा? बटन का अगर टाइप सबमिट है, सो बटन का क्लिक इवेंट फायर नहीं होगा, वो फॉर्म को सबमिट करेगा। जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो जो भी मैंने वैलिडेशन अप्लाई की होंगी, वैलिडेशंस, वो ट्रिगर करेंगी, करेक्ट। विच इज गुड, वी वांट दैट वैलिडेशन शुड ट्रिगर, फॉर्म शुड नॉट गेट क्लिक्ड, फॉर्म शुड गेट सबमिट। फॉर्म बिना वैलिडेशन के सबमिट नहीं हो। सो व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि बटन के क्लिक पर फॉर्म सबमिट हो, बटन का क्लिक इवेंट फायर ना करे। तो इसलिए हमने टाइप लिखा सबमिट, सो दैट व्हाट विल हैपन नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन, बटन का क्लिक इवेंट फायर नहीं होगा, बटन का सबमिट इवेंट फायर होगा। और जब सबमिट इवेंट फायर होगा तो वो फॉर्म को सबमिट करेगा। ओके Yes, sir. सीधा। और एक साथ में फॉर्म का रीसेट इवेंट बना लेते हैं, रीसेट। अब रीसेट के लिए तुम्हें टाइप सबमिट नहीं चाहिए, रीसेट के लिए तुम्हें एक्चुअल में क्लिक इवेंट चाहिए। चलो वो बाद में बनाते हैं, रुक जाओ, पहले इतना देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग। इन द सेंस मींस तुम्हारा फॉर्म आया या नहीं आया।
Yes, my form is available. Exactly, it is there. Okay. अब फॉर्म यहाँ पर है. Now what we do is submit कहाँ है? मुझे कैसे पता लगेगा मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है? So यहाँ पर हमें एक submit event डालना पड़ेगा. Instead of click at the button, I need to add a submit directive. Okay. So ng submit ये क्या है? डायरेक्टिव है. ng submit क्या है? डायरेक्टिव है. ओके. जो किसको ट्रिगर करेगा? रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव. डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जो अपनी फंक्शनैलिटी इंजेक्ट करते हैं. तो जैसे क्लिक डायरेक्टिव जो है वो ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी इंजेक्ट करता है. सिमिलरली ng सबमिट क्या करेगा? फॉर्म सबमिट फंक्शनैलिटी को इंजेक्ट करेगा. राइट. इट इज गोइंग टू सबमिट अवर फॉर्म. सो ng सबमिट इज अ डायरेक्टिव. तो यहाँ मैं अपना हैंडलर डाल देता हूँ. So I will name it like form submit handler. Again, what I have achieved now? What is this? What I have achieved with this? Okay. Let's see who is sleeping. Bolo. Dheeraj, Lalit, Event Tushar, handling. Abhilasha, Ritu, Sir, Shubham, event handling. Suraj, Akash. और कौन बच गया? So you have initialized here, but you have to declare it on the code behind the file. The No, no. form submit What I'm handler. asking is what I have achieved here. What you call this selected line? Sir, event handling. The event. Event binding. Event Fine. binding. Right. So Yes, sir. now obviously I don't have the definition of this handler. Go to your TS code. और यहाँ पर इसकी functionality define कर दो. क्या functionality है इसकी? क्या functionality है इसकी? तो अभी चेक कर लेते हैं. यहाँ पर जब आएगा तो हम लॉग कर लेते हैं console.log और मुझे पूरा का पूरा फॉर्म की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी. I can say this dot my form dot value. जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे अपने फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी. मुझे अपने फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी. ओके. लेट्स सी मिलती है कि नहीं. प्रयत्न देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे से. अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं. अजय शंकर फुल नेम. ईमेल डाल दिया. यूजर नेम डाल देते हैं अजय शंकर 084. करेक्ट. पासवर्ड डाल देते हैं अजय @123. अभी कोई वैलिडेशन नहीं लगाई. अभी बिना वैलिडेशन के जैसे हम चेक करते हैं कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है. कंसोल में गए and now I submit. The moment I submit, you can see I can get all the values whatever I filled here. मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ. सपोज यहाँ पर डाल देता हूँ अजय शंकर भारद्वाज. वैल्यू पासवर्ड डाल देता हूँ admin @123. I will change the email as well. Say gmail.com. Right now, if I submit, I will get the updated value. See, clarity. Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक ये तो पता लग गया कि with the very simple steps you will be able to easily submit your form. अब एक और काम करते हैं. Reset भी डाल देते हैं. Reset. So for reset, as I said, I don't need type as submit. I need click event actually. Click directive. Reset handler. Okay. Let's go back to TS और reset का भी reset event handler का भी कोड लिख देते हैं. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? Again, simple line of code where we are saying this dot my form dot reset. Automatic functions होते हैं. ये फायदा होता है dynamic form का. All the functions are automatic. I mean, all the functions are already there predefined. So you just need to use it. मैंने my form dot reset करा, वो automatically इसको ये function call होगा और मेरे form को reset कर देगा. Let me show you how.
यहाँ वैल्यूज डालते हैं, पासवर्ड admin@123, मैंने इसको सबमिट किया तो सबमिट हो गया। अब मैं अगर रीसेट करूंगा तो मेरा फॉर्म एम्प्टी हो गया। डिड यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. यू सॉ दैट Yes, राइट? sir. सिंपल। अब इसमें हम वैलिडेशन लगाते हैं। ओके, नाउ let's add validation to it. Okay, let's add validation. So, validation के लिए मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? ओके, गुड। So let's add validation. I mean on UI side. On UI side. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक div डालते हैं या एक div ही डालते हैं, वो बेटर रहेगा। div डालते हैं और यहाँ लिखते हैं *ng if। ठीक है, if रिमेंबर मेरा ये था, ये फंक्शन था फॉर्म कंट्रोल, है ना? इसका शॉर्ट नेम ले लेते हैं और ये कंट्रोल देता था, इसका शॉर्ट कर देते हैं FC और ओनली F, दैट इज आल्सो फाइन। F स्टैंड्स फॉर फॉर्म। सो मैं क्या लिखता हूँ, क्लियर है ना? आई मीन इट्स जस्ट अ नेम, इट इज गोइंग टू गिव मी द कंट्रोल। सो लेट्स सी हाउ। सो F डॉट मींस मेरे जो जो फंक्शन है, इट विल गिव मी ऑल द कंट्रोल्स। डॉट फुल नेम डॉट डॉट एरर्स। अगर मेरा फुल नेम में एरर्स आता है, एरर्स है, राइट? तो क्या करो इस केस में? करो इस केस में मैसेज दे दो। क्या मैसेज दोगे? क्या मैसेज दोगे फुल नेम में? प्लीज एंटर फुल नेम, यस और नो? Just give me a minute. Someone is calling me and it's a little important. Just wait. Okay, I'm doing my back. So please enter full name. Let's see will this work or not. ठीक है, देखते हैं, देखें। तो ये तो अभी दिखा रहा है,
प्लीज एंटर फुल नेम। ऑब्वियसली दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली फुल नेम रिक्वायर्ड था और हमने अभी तक कुछ इसमें डाला नहीं, तो वो पहले से एरर दिखा रहा है तुम्हारे को, करेक्ट ना? तो मैं इसको कैसे हैंडल करूं टीम? प्रॉब्लम इज, ढंग से सुनना, अगर समझोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। मैंने यहाँ पर लगाया है कि वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड, विच मींस कि ये कंट्रोल खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब जब मैं इसे एम्प्टी सेंड करूंगा, तो जब ये एम्प्टी होगा टेक्स्ट बॉक्स, तो ये तो एरर देगा ही देगा, ये एरर देगा ही देगा एरर्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। तो मुझे तो ये चेक करना है ना कि भाई तुम एरर मुझे तब दो, यू गिव मी एरर व्हेन आई सबमिटेड द फॉर्म, नॉट बिफोर। यस और नो? यस यस सर। अभी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। Yes, एक काम sir. करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं सबमिटेड बूलियन टाइप का, राइट? और इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं फॉल्स, करेक्ट? ठीक है ना? यस और जब हम एक्चुअल में फॉर्म सबमिट हो, तो हम जो है सबमिटेड को ट्रू कर दें, और जब रीसेट हो अगेन उसको सबमिटेड को फॉल्स कर दें, करेक्ट? नो? Yes, sir. ठीक है, गुड। अब आते हैं अपने HTML पे, और यहाँ एक और कंडीशन डालते हैं, एंड सबमिटेड इक्वल्स टू ट्रू। जब सबमिटेड ट्रू हो, राइट? जब मेरा सबमिटेड ट्रू हो, तभी at that situation only you do this, right? तभी ये मैसेज आना चाहिए एरर वाला। so let's try now and see। अब एरर चला गया। अब मैं काम करता हूँ, बिना कुछ ऐड करे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। ये तो सबमिट हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, इसे सबमिट नहीं करना चाहिए, बटन को सबमिट फायर नहीं करना चाहिए, एरर आना चाहिए। let me check what else I have done wrong। एरर आया था शायद, लेकिन कंसोल पे नहीं आया था। मैंने कहीं गड़बड़ करी है, 2 मिनट रुको जरा। ng if f.fullname.errors and submitted equals to true, तो प्लीज एंटर फुल नेम। एरर आया था? हाँ आया था ना, ये रहा सर एरर आया था, कंसोल में नहीं आया था। आया था, लेकिन ये बटन भी तो सबमिट नहीं होना चाहिए ना, ये भी तो गलत है। फॉर्म क्यों सबमिट हो रहा है? डिड यू सी दैट? यस जी जब सर। एरर है तो मैं क्यों फॉर्म को सबमिट करूं? फॉर्म सबमिट का मतलब समझते हो? फॉर्म सबमिट का मतलब क्या होता है? Error ना। फॉर्म सबमिट का So मतलब it होता is है कि एपीआई कॉल हो जाएगी। हाँ, फॉर्म सबमिट का मतलब है यू आर सेंडिंग योर डेटा टू एपीआई। देखो ना, इट शुड नॉट हैपन। तो इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करूं? तो मैं बटन में भी वही कंडीशन लगा देता हूं। यहाँ बटन पर अगेन वन मोर डायरेक्टिव, डिसेबल्ड, बटन को डिसेबल्ड कर देता हूं। डिसेबल्ड कब डिसेबल हो? डिसेबल्ड, बढ़िया। डिसेबल कब हो? कब तक डिसेबल रहे? तक एरर्स हमारे मतलब एरर्स फ्री हो, जो तो एरर फ्री हो, मतलब हमारा कंफर्म करेक्ट। when there are no errors। अगर ये डिसेबल हो जाए, अगर 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 माय फॉर्म डॉट, ये डिसेबल रहे अगर माय फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर मेरा फॉर्म इनवैलिड है,
अगर मेरा फॉर्म इनवैलिड है, करेक्ट, इनवैलिड एक सर्विस होती है जो फॉर्म के वैलिड या इनवैलिड पर ट्रिगर करती है। मतलब अगर फॉर्म अगर इनवैलिड है तो ये सर्विस ट्रू देगी कि फॉर्म इनवैलिड है। तो अगर ये सर्विस मुझे फॉर्म इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड सर्विस ट्रू दे रही है कि भाई तुम्हारा फॉर्म इनवैलिड है, राइट, जो कि यहां पर होगा, करेक्ट ना, तो डिसेबल कर दो बटन को इनेबल ही मत करो। ओके, क्लियर है? फिर से शुरू करें, लेट्स सी। बटन डिसेबल्ड है, राइट, मैं क्लिक ही नहीं कर सकता इस पर, मैं इस पर क्लिक ही नहीं कर सकता। ओके, यस Yes, sir. रुको यार, ये ठीक नहीं है, मतलब ये मजा नहीं आया, 2 मिनट रुको। डिसेबल, तो फिर मुझको पता कैसे चलेगा कि मेरे को एरर एरर आया है? मेरा फॉर्म यूजर को कैसे पता चलेगा? यूजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे सब कुछ भरना है? और काम करते हैं, थोड़ा सा और इनोवेट करते हैं। यहाँ दो मिनट मुझे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर वो सबमिटेड है और पासवर्ड एरर है तो ये कंडीशंस तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है और ये वर्क भी कर रही है। मुझे बटन को कंट्रोल करना है किस तरह से, एंड बटन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास टाइप सबमिट है, ठीक है, सबमिट है तो वो इट हैज टू, ओके, कोई इशू नहीं है। ना कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई नहीं, wait, wait, wait. मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, आई कैन डू मच बेटर देन दिस। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ कुछ नहीं करता, लेट्स नॉट डू दैट ओवर हियर। तो अच्छा तरीका है ना, आई हैव अ फार बेटर वे। तो जब ये कोड यहाँ आएगा सबमिट पर, राइट, जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा, करेक्ट ना, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ यहीं पर ही कि इफ दिस डॉट माई फॉर्म, अगर ये इनवैलिड है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये इनवैलिड है, अगर मेरा फॉर्म इनवैलिड है, तो मैं बोलता हूँ यहीं से रिटर्न हो जाओ, रिटर्न फ्रॉम हियर ओनली। मतलब ये इसके बाद we supposed to call API and send all details to it। तो ये कोड, ये बिजनेस लॉजिक चलेगा नहीं, ये कोड चलेगा ही नहीं, मेरा बिजनेस लॉजिक इसके बाद आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा फॉर्म इनवैलिड है तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस लेट्स ट्राई। Sir. यही मेरी टेंशन थी एंड दिस इज हाउ आई कैन रिजॉल्व माय इशू। तो अब अगर मैं सबमिट करता हूं तो देखो मेरा बैक एंड कोड फायर नहीं कर रहा, कोड बिहाइंड कोड फायर नहीं कर रहा, देख रहे हो? और मेरा वैलिडेशन भी ट्रिगर कर रहा है, देखा? यस है ना, है कि नहीं? यस अब मैं तुम लोगों को अगर ये कोड दूं तो क्या तुम एटलीस्ट बचे हुए पर लगा सकते हो रिक्वायर्ड फील्ड? आई एम यस नॉट इन अ हरी टू फिनिश इट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत अच्छा यस कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड यू नो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड एंड हैव अ ग्रिप ऑन इट। बिकॉज अगर जितना अच्छा तुम इसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही अच्छा तुम इसको आगे यू कैन प्ले विद इट, बिकॉज देयर विल बी सिचुएशन वेयर यू नीड टू हैंडल द फॉर्म डायनेमिकली। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन सच सिनेरियोज जहां पर एक बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नई रो ऐड हो जाती है और उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं या कुछ ड्रॉप डाउन आ जाते हैं या कुछ रेडियो बटन आ जाते हैं, राइट? यस या हैव यू सीन सच सिनेरियो कि जहां पर हम प्लस 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 ऐड क्लिक करते रहते हैं और नए नए कंट्रोल्स ऐड होते रहते हैं? तो ऐसे सिनेरियोज डायनेमिकली जहां पर फॉर्म को एक्सटेंड करना है वहां पर तुम्हारा रिएक्टिव फॉर्म काम आएगा। सो बेस्ट वे इज कि इस पे कमांड लो,
So I'm not in I'm not in a mood to finish it today itself. I'm not in hurry to finish it today itself, right? तो better रहेगा हम इसको यहाँ close करते हैं, right? So Yes. I will be sharing this code plus today's recording today itself. Don't worry, without fail. And what Yes. you have to do is Okay, sir. username पर, email पर और password पर, तीनों पर तुमने validation लगानी है. Okay? Yes. Okay, sir. See you in the next session. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.